آپ دیکھ رہے ہیں 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل. سب کو محبت برا سلام. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آئے دن آپ سنتے ہیں پاکستان میں کہ فلاں جگہ پہ فلاں احمدی کو شہید کر دیا اور اسی طرح کی خبریں آتی رہتی پاکستان سے. آج رانا عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس طرح توجہ نہیں دے رہی. عدالتیں کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں؟ اور ان سے اس بچے کے بارے میں بھی پوچھیں گے, ان کے پاس معلومات ہیں. چلتے ہیں رانا صاحب کے پاس. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے 9 نیوز ٹی وی کو ٹائم دیا. رانا صاحب آئے دن وہاں سے اطلاع آتی ہے کہ آج ننکانہ صاحب کسی کو شہید کر دیا, کل وہاں کر دیا پشاور میں. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ہر کمزور آدمی مذہبی طور پر جماعت احمدیہ کا تو بہت ہی کمزور ہے. وہاں پر اس کی تو شدت سے مخالفت ہو رہی ہے. عدالتیں بھی ڈرتی ہیں, انتظامیہ بھی ڈرتی ہے. کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملا. کوئی بھی اقلیت ہو, اس کے علاوہ احمدیوں پر تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. عدالتوں نے ان کے قاتل پہلے 2 سال جو ان کے والدین قتل ہوئے ہیں ان کے جو قاتل تھے ان کو چھوڑا ہوا ہے, ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. تو وہاں تو عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں. آپ پیسہ دیں اور فیصلہ کروا لیں, اور پیسے کے ساتھ ساتھ جب مذہبی پریشر ہو تو پھر وہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہی فیصلے ہوتے ہیں. یہاں بھی انتظامیہ اور عدلیہ کا قصور ہے کہ وہ انصاف نہیں کر رہی. جب پہلے قاتل کو نہیں پکڑا جاتا تو دوسرے قاتل کو کیسے پکڑا جائے گا؟ یہ احمدیوں پر تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک تو پہلے بیچارے کمزور ہیں اور پرامن لوگ ہیں, ان کی ذاتی دشمنی تھی مگر یک طرفہ قتل ہو رہے ہیں. پہلے ان کے چچا کو, ان کے والد کو قتل کر دیا گیا, اب ان کے بیٹے اکیلے وارث کو قتل کر دیا گیا. جبکہ پہلے ان کی وہ ضمانتوں پر رہا ہیں قاتل, وہ دن دہاڑے پھر رہے ہیں ہر طرف, تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی ہے پاکستان میں تو مظلوم کا کوئی نہیں ہے. ظالم جو سماج ہے یا عدالتیں ہیں یا انتظامیہ ہے وہ تو پیسے لے کر سارا کام کر رہی. لیکن رانا صاحب آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ضمانت ہو جاتی ہے, قتل کی تو ضمانت میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو جب یہ اس طرح ضمانت پہ لوگ باہر آ جاتے ہیں, پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ سزا بھی نہیں ہونی, تو یہ پھر جو مرضی کرتے رہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں, تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہزاروں قاتل ڈکیت باہر گھوم رہے ہیں اور دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں, دن دہاڑے اغوا ہو رہے ہیں. کیا نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ تو اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ جج شک کا فائدہ دے کر, اندھیرے کا فائدہ دے کر, گواہ کو بٹھا کر اپنی قلم سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر تو رہا کر دیتے ہیں ملزموں سے پیسے لے کر. اچھا یہ بتائیے کہ جج تو چلو یہ کام کر رہے ہیں اور وکلا بھی ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, مگر ان لوگوں میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو جب انسان ہوتا ہے نا, جسٹس بنتا ہے یا جج بنتا ہے تو اسے بھرپور فیصلہ کرتے وقت سارے نشیب و فراز کی سٹڈی کرنی چاہیے. مگر سٹڈی اس لیے نہیں ہوتی کہ جب ان کو نوٹ مل جاتے ہیں تو پھر وہاں سٹڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائل ہی غائب ہو جاتی ہے. فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں, قائد اعظم لگانا پڑتا ہے. اور پاکستان میں تو ہزاروں لوگوں پر ظلم ہوا ہے اسی بنا پر. اقلیتوں پر بھی ہوا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے. جو پیسہ دے گا مائٹ از رائٹ چل رہا ہے. رانا صاحب یہ آئے دن یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, ایک بندہ اتنی محنت کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنتا. آپ نے سنا ہوگا پشاور میں بھی احمدیوں کو شہید کیا گیا, اور ان لوگوں کو نظر میں کوئی انسان کی قدر نہیں ہے, عام پبلک کی نظر میں کوئی قدر نہیں. احمدی تو بیچارے معصوم لوگ ہیں, وہ ان کے لیے کرن والا ہیں, عدالتوں کے لیے, انتظامیہ کے لیے. پولیس والے بھی دیکھا نہیں آپ نے, وہ ایک بندے نے عدالت میں ایک احمدی کو شہید کر دیا تھا. عدالت میں شہید کر دیا, عدالت کے کٹہرے میں جہاں امن کی گارنٹی ہوتی ہے. تو یہ وہاں قانون ہی نہیں ہے. مائٹ از رائٹ چل رہا ہے پاکستان میں. رانا صاحب یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح تو احمدی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے, اور پھر کیا کریں بیچارے, کدھر جائیں وہ؟
एमडी भी महफूज नहीं है, बाकी लोग भी वहां से निकल रहे हैं। आपको देखा, आप देख नहीं रहे कि पाकिस्तान में क्या रूटीन बन गई है। हर आदमी लाखों रुपए लेकर हाथ में फिर रहा है, वो कहते हैं मुल्क से निकल जाओ, क्योंकि मुल्क में अमन ही नहीं है, किसी भी लिहाज से अमन है ही नहीं है मुल्क में। जिस तरह से अब जब अदल नहीं मिलेगा किसी मुआशरे में, तो वहाँ अमन कैसे कायम रह सकता है। ये अदालतें पैसा लेती हैं, सिफारिशें लेती हैं, सौदाबाजी होती है। बैठे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठे ही पाकिस्तान में, ये बर्मिंघम में या लंदन में एक बिल्ला अलाट हो जाता है करोड़ों रुपए का, तो उसने पहले तो उसी के करने। अब भी लोग नवाज शरीफ को जिंदाबाद कह रहे हैं, इसलिए क्यों नमक हलाल कर रहे हैं ये लोग। तो बात ये है कि जो लोग राशि हैं या मुर्तशी हैं, उनका निजाम तो ऐसे ही चलता है। इन लोगों को क्या पता इंसानियत क्या होती है, अदल क्या होता है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, इन चीजों की इनको अवेयरनेस नहीं है। ये लोग तो शिकमपुरी के पीछे जानवरों की तरह भागे हुए हैं, बस पैसे मिल जाए और जो मर्जी करवा लो इनसे। राणा साहब, ये आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीडिया पे आके तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग महफूज हैं, सबकी इज्जत भी महफूज है, सबकी जान भी महफूज है, हम मुकम्मल तौर पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अहमदियों को भी कोई मसाइल नहीं है। आए दिन ये मीडिया पे आके शोर डालते हैं मुख्तलिफ लोग। मुझे ये बताएं कि आप वहां से 100 लीडर इकट्ठा करके खड़ा कर दें, या मस्जिद अमाम मस्जिद खड़ा कर दें 100, या गांव के नंबरदार खड़ा कर दें और आवाम से पूछें कि आपको इन पर एतमाद है, क्या ये सच बोलते हैं, तो सारे कहेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। मुआशरे की हालत ये है कि आपका गांव का अमाम मस्जिद, नंबरदार, एमपीए, एमएनए, बीसी, वो आईजी तक, ये सारे झूठ बोलते हैं, बददियानत हैं, बदकार हैं, राशि हैं, तो उनसे आप इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं। तो राणा साहब, जिस तरह ये आपने देखा कि यहाँ से भी पिछले दिनों वो मकसूद साहब गए हुए थे, जिनका जनाजा यहाँ आया, उनको भी शहीद किया गया ननकाना साहब में। वो भी बड़े अमीर आदमी थे वहां अपने एरिए के। ये लड़का भी पता चला कि जायदाद का वारिस था। और ये इस आपके ख्याल में ये भी वजह हो सकती है कि ये हसद होता है, जेलस होते हैं कि ये हमारे से अमीर है, अच्छी जिंदगी गुजार रही है, ये भी चीजें साथ आपके ख्याल में कि यह सिर्फ मजहब है? नहीं, मजहब अहमदी तो लवारस के हैं पाकिस्तान में, उनकी तो आपको पता चल जाए ना, थाने में अहमदी के खिलाफ FIR है तो या कोई मसला है, तो अहमदी को तो कोई सपोर्ट करता ही नहीं है ना, बिल्कुल। वो उनके दीन का मसला बन जाता है, वो ईमान का मसला बन जाता है। अहमदी की तो सपोर्ट करनी नहीं है। बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई बटालवी हो, वो बदमाश भी हो, तो उसकी सपोर्ट करनी है, क्योंकि वो उनका हम पल्ला मुसलमान होता है। ये तो एक मौलवी ने वहां प्रोपेगेंडा कर रखा है कि अहमदियों को मारो और दूसरों को बचाओ, बेशक वो गुंडे हो, बेइंसाफ हो, कातिल हो, नशाबाज हो, कुछ भी हो। तो ये तो चल रहा है पाकिस्तान में। तो जब आपको इनकरेज करे मुआशरा कि अहमदियों के साथ ऐसा करो और मुसलमानों का साथ दो, तो वो लोग सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती इज्जत के लिए आगे आ जाते। राणा साहब, जिस तरह अभी आपने बताया, और मुझे भी इल्म है कि 2019 में इस लड़के के वालिद को भी शहीद कर दिया गया था, तो ये सिलसिला, इसका मतलब कि उनको जब पकड़ा गया है तो उनके ज़हन में ये था कि अब इसके बेटे को भी इनके को शहीद करेंगे, हम कत्ल करेंगे, तो इसमें वो कामयाब हो गए। आपके ख्याल में अब उनको दोबारा पुलिस गिरफ्तार करके कोई कार्रवाई कर सकेगी? हाँ, पुलिस करेगी, गिरफ्तार करेगी और उस पर FIR भी लिखी जाएगी, गवाहों के बयान भी लिए जाएंगे, पुलिस रिपोर्ट भी होगी, मेडिकल रिपोर्ट भी होगी। जब वो जुडिशरी में जाएगा, जज के पास जाएगा, तो जज को जो पैसे लगाएगा जमानत हो जाएगी, चोर फिर कातिल फिर बाहर फिरेंगे। अच्छा, जमानत की बात कही आपने। लाहौर में इस वक्त और मुख्तलिफ शहरों में हमारे अहमदी काफी देर से अपनी जमानत के लिए दरखास्तें देते हैं, तो उनकी जमानतें तो नहीं होती। वो जज आता है तो तारीख पर तारीख दे के चला जाता है। भाई, जमानत उसकी क्यों होगी जो पैसे नहीं देता या जो रिश्वत देना मुनासिब नहीं समझता, उसकी कैसे जमानत होगी? जमानत तो उसकी होगी ना जो पैसे देता है, जिसकी सिफारिश है और जो पैसे देता है।
नहीं तो वो बेगुनाह पड़े रहे जेल में, जो अहम ये भी नहीं। जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं कि पैसे जज लेते हो। मैं ये जजों को भी मैं ये नहीं कहता, जजों पर प्रेशर डालते हैं एमपीए, एमएनए, ब्यूरोक्रेट, सफेद पोश लोग, वो रिश्वत लेते हैं और वो आगे सिफारिश करते हैं, दोस्ती की बिना पर वो जमानतें करवा लेते हैं, केस में से बरी करवा लेते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जज पैसे ले रहे हैं, बाद जज लेते भी हैं पैसे। अच्छा, जो मेरे इल्म में है कि ये पूरी माफिया है, एक बंदा नहीं पैसे लेता है, बकायदा तकसीम होते हैं पैसे जब लिए जाते हैं और डील की जाती है और फिर उससे पैसे के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये हलाल है, हराम है, इससे ये पैसा जायज नहीं हमारे लिए? ये तो कहते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। पाकिस्तान में तो भाई ऐसे फिरके मौजूद हैं जो कहते हैं जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोलते हैं और नंबिया के बारे में अकीदा रखते हैं कि उन्होंने झूठ बोले, हम भी झूठ बोल सकते हैं। झूठ तौर पर हलाल है और फिर रिश्वत देना भी वो कहते हैं जायज है। भाई ये झूठ में ही आती है सारी चीजें। जब वहां का इस्लाम ही बदल चुका है, इस्लामाबाद बन चुका है इस्लाम का, तो आप जो मर्जी करें, जो मर्जी अपना फतवा दे लें, कानून बना लें आप। लेकिन राणा साहब, जब भी ये लोग हलफ लेते हैं तो ये कहते हैं कि अमानत, दयानत और वो ईमान, इत्तेहाद, वो बड़ा इनका बकायदा तौर पर हलफ लेते हैं जब, तो बड़ा बोलते हैं। तो भाई कहने को देखो, कहने को तो हमारा सदर जरदारी, पाकिस्तान का सदर, वो भी सादिक और अमीन था और नवाज शरीफ भी सादिक और अमीन था। तो आप कहने को तो बहुत कुछ है। आपके ये फजल रहमान भी अमीन और सादिक है, ये सारे नेक लोग हैं, जुब्बा पोश, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हैं। फिर आप कहेंगे जुमला मोहतरजा कह दिया। मदरसों में क्या हो रहा है, ये सारे लौंडे बाग इकट्ठे हो रहे हैं। राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। आपसे फिर भी राब्ता रहेगा। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे सिंध के गवर्नर जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर, आजकल एक वीडियो उनकी भी चल रही है और मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर ब्रेक के बाद बड़ा अहम मौजू है, उस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। आजकल एक वीडियो मंजर आम पर आई है, वो सिंध के जो साबिक गवर्नर थे मोहम्मद जुबैर साहब, जो असद उमर के भाई भी हैं, उनकी एक खतून के साथ जो सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। और जब इसके मुतल्लिक पता किया गया जो हमारे ज़राए हैं, तो ये पता चला कि ये वीडियो जो है मुख्तलिफ होटलों में ये लोग जब इन कामों के लिए जाते हैं तो वहीं से कहीं से बनी है। और ये मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि कोई भी लड़की इनके लिए मदद के लिए पहुंची तो ये जो मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर है, इन्होंने उसके साथ ज्यादती की और कोई भी लड़की इन्होंने वहां पे नहीं छोड़ी, जो भी जाती रही, खतून गई, कोई भी गया। ये सोशल मीडिया से मैं आपको बता रहा हूं। अब जब ये लोग हलफ लेते हैं तो वहां पे इनके चेहरे और होते हैं, अंदर से ये दरिंदे हैं। ये कोई पहली वीडियो नहीं है, इन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए, जितने ये सियासतदान गलत पैसे के साथ वहां पे याशी के अड्डे बनाए जाते हैं, शराब की महफिलें चलती हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ की भी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी जिसमें वो शराब सामने पड़ी हुई थी। नवाज शरीफ भी है, सारे ये लोग हैं। और अफसोस ये है कि इनके हाथ में मुल्क का जो निज़ाम है वो दिया हुआ है। और इससे बड़ा अफसोस और बदकिस्मती अवाम की ये है कि जब ये मर जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, तो इनकी औलाद आगे आ जाती है और वो औलाद जो होती है इनसे बड़ी हरामखोर होती है, वो ज्यादा हराम के कामों में खुश रहती है। और ये सिलसिला अरसा दराज से पाकिस्तान में चल रहा है। अवाम है, गरीब लोग हैं, किसी की बच्ची के साथ कुछ हो गया वो खामोश रहती है, बाहर आके बताती नहीं, बताएगी तो इन लोगों के इतने वसी तल्लकात होते हैं कि पुलिस वाला तो कुछ चीज़ ही नहीं, SHO तो कुछ चीज़ ही नहीं इनके सामने होता, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होते, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई
इस पे इन पे कोई कानून लागू नहीं होता। जरदारी साहब पे भी ये इल्ज़ाम है कि वो भी इसी तरह चलते रहे और ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और नवाज शरीफ के मतलब भी इस तरह की अफवाहें चलती रही कि मुख्तलिफ अदाकारों के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। और ये चीज़ें जो है शहबाज शरीफ के मतलब भी आप देखते हैं, उसके बेटे के मतलब भी देखते हैं। नस्ल दर नस्ल ये हरामखोर जो हैं ये मुल्क पर हुकूमत भी कर रहे हैं, मुल्क के में जो बच्चियां उनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं, मगर कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनसे हिसाब लेने वाला नहीं। उसमें हो सकता है कि और ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हों। मेरा तो ख्याल है कि हो क्या सकता है बिल्कुल सर। पिछले दिनों एक ऑडियो मंजर आम पर आई, एक खतून बेचारी रो रही थी कि यहाँ पे ये लड़कियां जाके मदद मांगती हैं, वो जो पनाह गाहें बनाई हुई हैं मुख्तलिफ ये समाजी जो रहनुमा है या जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, तो मजलूम लड़कियां वहाँ पहुँचती हैं या जेल से, फिर उनको रात को मुख्तलिफ जगह पे सप्लाई किया जाता है और वहाँ पे उनके साथ जो होता है वो बेहतर जानती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरह जिस तरह ये गवर्नर आपको मैंने बताया साबिक जो था वो, या दूसरे लोग जो भी बड़े बड़े होते हैं, ऑफिसर है जो गवर्नमेंट में है, जो बड़े बड़े कारोबारी शख्सियत है, बिजनेसमैन है, ये सब लोग इस में शामिल, तो सारे तो नहीं कहते मगर अक्सर शामिल होते हैं इन कामों में। एक तरफ रियासत मदीना की बातें करने वाला एक बंदा रोजाना आके लोगों को बताता है कि मैं बस पहुंच चला हूँ रियासत मदीना बनाने तक। दूसरी तरफ जब भी देखते हैं आप, कभी नून लीग का कोई पकड़ा जाता है, कभी वजीरे वो जो है बल्दिया है उसकी डांस पार्टी चल रही है, वो डांस कर रहा है, शराब की गिलास चल रही है, शबाब चल रहा है, और अपने आप को ये बेहतरीन मुसलमान भी समझते हैं। अगर आप पाकिस्तान की मीडिया पे नजर दौड़ाएं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े चैनलों पे और वो इस्लाम की ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे सबसे बेहतरीन मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं पूरी दुनिया में नहीं रहते, और वो जनाब आके झूठ का ऐसे सहारा लेते हैं और बिल्कुल साफ तौर पर वो झूठ बोलते हैं। यहाँ पे इनको अब सबको मौत पड़ जाएगी जब ये असल हकीकत लोगों की, क्योंकि इसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, वो भी इन्हीं कामों में पड़े हुए, और मुल्क का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की इमाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अखलाकी हालत जो है वो आए दिन सोशल मीडिया पे आपको नजर आती है, और आज इन लोगों को ये भी फिक्र रहती है कि ये सोशल मीडिया जो आ गई है ये भी हमारे लिए अज़ाब बन गई। हम तो छुप छुपा के ये सारा सिलसिला चला रहे थे, और ये वीडियो कहाँ से आती है, होता ये है कि ये मुख्तलिफ होटलों में जब जाके रहते हैं दिमागी तौर पे, क्योंकि उस वक्त इनके जेल में शैतान सवार होता है, वहाँ होटल वाले जो हैं वो कैमरे लगाए उन्होंने बेडों पे, इनके नौकर हैं उन्होंने फार्म हाउस पे कैमरा लगा दिया। जिन नौकरों पे इनको इतमाद होता है वही कैमरा लगा देते हैं। जब उन नौकरों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब उन नौकरों से कोई इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, वो फिर वीडियो इनकी जो है सोशल मीडिया पे फेसबुक इधर उधर डाल देते हैं ताकि हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ अब इनका भी हो। तो ये हालात वहां पे बने हुए हैं कि ना जो मालिक है वो महफूज है, ना नौकर महफूज है, ना नौकर की बीवी महफूज है, ना उसकी बच्चियां महफूज हैं। सिंध में तो इससे भी ज्यादा बदतर हालात है, और वहां पे जब भी आप देखें कि वहाँ के लोगों की जो जिंदगी है, उनकी जिंदगी का जो म्यार है वो इसलिए भी इतना गिरा हुआ है कि ये लोग चाहते नहीं कि उनको थोड़ी बहुत ही अक्ल आ जाए। वो अगर उनको अक्ल आ गई तो वो हमारी अक्ल मार देंगे। इन चीज़ों पे भी ये लोग करते हैं काम के, इनको ना तलीम आए। तलीम का वैसे ही आप देख रहे तो क्या हालत है, ये आ जाता है जी बच्ची ने 1100 से 1100 नंबर लिए, जब उससे पूछा जाए आप जाके उसका इम्तहान ले लें, उसको कोई पता नहीं होगा। नंबर बढ़ते गए, तलीम का म्यार गिरता गया। ये भी आप खुद देख ले, वहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं उनको भी पता ही है कि क्या हालात है वहाँ।
नाज़रीन ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने लेके आता हूँ कि ये लोग जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, जो इस्लाम के कहते हैं जी हम बहुत बड़े ये खिदमत करने वाले हैं, ये जब अहमदियों को कहते हैं जी आप काफिर हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, तो वहाँ पे इनको अपने गिरबानों में देखना चाहिए। और उस वक़्त अगर ये सिर्फ गिरबान में अपने में देख लें तो शायद थोड़ी सी शर्म हो, तो शर्म से डूब मरना चाहिए इनको मेरे ख्याल में। क्योंकि आप अपनी हालत पहले देखें, दूसरों को काफिर कहने से पहले, कि ये आपने एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है कि कोई आपकी तरफ जब कोई उंगली उठाने लगता है तो आप उन सारी चीजें जो है फिर अहमदियों की तरफ ले जाते हैं। मगर जो लोग अच्छे हैं, जो समझदार, उनको पता है कि अहमदी पुरअमन और पुरसकून जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, फायदा देते हैं। नाज़रीन जब तक इन हुक्मरानों से जान नहीं खलासी नहीं होगी जान की, तो कैसे पाकिस्तान में लोगों की इज्जतें महफूज होंगी, कैसे लोग अपनी बहू बेटियों को की इज्जतों को महफूज कर सकेंगे, ये एक सवाल है। किस तरह हम पाकिस्तान की हालत बेहतर कर सकते हैं जब आपके ऊपर डाकू लुटेरे और ऐसे लोग बैठे हो जो आपके बच्चियों की इज्जतों के साथ खेलते हो, तो आप क्या अपने आप को महफूज समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप महफूज हैं। आपको जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करना आपने, जब तक उस वक्त तक आपको ये खतरात जो है इर्द गिर्द मिलते नजर आएंगे, मंडलाते नजर आएंगे, और इससे बाहर निकलने का आपके लिए रास्ता भी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि आपने खुद अपने लिए रास्ते बंद किए। जिन लोगों ने आपके लिए हदायत के लिए प्रोग्राम बनाए हुए थे, जो लोग आपकी तरबियत के लिए प्रोग्राम बनाते थे, जो लोग आपकी सलाह के लिए प्रोग्राम बनाते थे, उन पर आपने पाबंदी लगा दी, अहमदियों पर जो हकीकी मुसलमान थे। जिन लोगों ने आपको बताना था कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, और ये भी इन लोगों ने लगवाई जो बदकार लोग थे, जो बुराइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे ताकि हमें कोई पूछने वाला ना हो। हम बेलगाम होकर जो मर्जी करते फिरे, जिसकी मर्जी इज्जत से खेलते रहे, जिसका मर्जी बेड़ा गर्क कर दे, जो मर्जी कर दे, कोई हमें पूछेगा। क्योंकि जब इनको पता था कि इस माशरे में शौर और अकल आ जाएगी और लोगों को समझ आ जाएगी, तो वो फिर हमें जीने नहीं देंगे। ये लोग नस्ल दर नस्ल आप पर हुकूमत कर रहे हैं। आप गौर कर लें कि नए बंदे को ये दाखिल नहीं होने देते, क्योंकि बकायदा तौर पर एक माफिया है और इतने मजबूत हैं ये कि कानून भी इनका गुलाम है और बड़े बड़े अदारे भी इनके गुलाम हैं। और ये चीज़ें जो है क्या पाकिस्तान को रियासत मदीना बनने देगी? क्या इमरान खान जो बातों से रोजाना लोगों को खुश करता है और लोग भी खुश हो जाते हैं, क्या वो रियासत मदीना बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। इसलिए कि इस माशरे को पहले ठीक करना होगा। ठीक करेगी सिर्फ कौन करेगा? ये आपको मैं सवाल छोड़ता हूँ, ये आप खुद सोचें कि कौन करेगा आपको ठीक। नाज़रीन आज के लिए इतने ही बहुत। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। जुड़े रहना एमरोज टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।